अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कुछ क्षण और हमारे साथ मंच पे रहिए। मैं प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज माय कॉलीग मिस लेखा प्रजापति। लेखा जब तक मंच पर आती हैं मैं आपको हमारे मेहमान का तारुफ करा देती हूँ। शी इज एन एक्टर, अ डांसर, अ कोरियोग्राफर. You've seen her as Kirti Goenka Singhania in a popular TV television show, a soap opera. Please welcome Mohena Singh from Reva Raj Parivar. और साथ ही साथ मैं अगले मेहमान का तारुफ भी कराती चलूं। प्रिंस दिव्यराज सिंह ऑफ रीवा. लेट्स वेलकम दिस भाई बहन की जोड़ी मोहेना एंड दिव्यराज सिंह, प्रिंस एंड प्रिंसेस. ओवर टू यू लेखा. मोहना एंड दिव्या, कैसे आप दोनों? सबसे पहले हेलो जी, माइक चेक. दिव्या, तब तक आप बताइए आप कैसे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? मैं बहुत ठीक हूँ और जी. पहले तो आपको नमस्कार और सभी यहाँ दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार. जी. सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबको नमस्कार एंड खमागनी एंड रीवा की तरफ से साहिब सलाम. रीवा वाइट टाइगर के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है. वाइट टाइगर्स को लेकर आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी है या फ्रेंड्स के साथ कोई अच्छी मेमोरी है? दिव्या? I actually have a memory. यस प्लीज. So पहले तो एक बैक स्टोरी I'll give you. जी. My mother really wanted my upbringing to be extremely normal, right? So born in the Raj Parivar, my mom thought that I was too wild and crazy, running around the fort, beating people, doing all sorts of crazy Rajputana things. But she really wanted to make sure that I have a very, very, very normal childhood. So she took me from Rewa and she took me to Bombay, and she made sure I traveled in trains, in buses. Really? I walked from school to home. She did everything. She tortured me. Absolutely. But I think so I really always thought that I was a normal ladki. जी. You know, she really like stuffed it in my head that don't think you're a princess. Keep your thoughts down. You're a normal girl. You're a normal girl. You're a normal girl. So fine. I never spoke about my heritage or anything in school. Never really. So we went to Corbett National Park once with a school, right? We went for a field trip. And I remember all the kids were sitting at night, and the adventurers, the ones who used to, the explorers who would take us around, रात में वो बात कर रहे थे, and they were doing a small quiz. And in class I never spoke. मैंने कभी बात नहीं करी, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, because I was always very nervous कि मैं कुछ गड़बड़ बोल दूंगी, and I don't want to do that. Now listening to this quiz, suddenly जो explorer थे उन्होंने कहा कि has anyone heard of the white tiger? Suddenly, like, my antennas were up. I was like, this is something I know. And I raised my hand. I said, yes, मुझे पता है white tiger के बारे में. And they said, आपको पता है white tiger कहाँ से आया है? I said, yes, Rewa. And all these kids are staring at me, that this girl who never raises her hand, she doesn't do well in her class, to be honest. How does she know this? And what is this place, Rewa? We've never heard of this place. So my teacher there, she was very impressed. She's like, very good.
then I went further ahead. I said, Rewa ke Maharaja Mahartan Singh ji was my grandfather, and he found the first white tiger, Mohan, and that's what Rewa is famous for, and that's what my my grandfather did for Rewa. I think that was a beautiful memory, and everyone just looked at me and they were astonished that what is she talking about? Maharaja, Rewa, what is all this? So basically, actually, we were a little bit unlucky to have been born at a time when the white tigers were not there in Rewa anymore. Oh, okay. So we had lost all the white tigers and they had gone to all the zoos. My grandfather had caught them and bred them, and then फिर उन्होंने उनको बाकी zoos में भेज दिया, विदेश में भी भेजा, इंडिया के zoos में भी भेजा, बट क्योंकि वो खुद सस्टेन नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही थी खुद को रखने के लिए, तो वो सारे बाहर चले गए. लेकिन फिर माय फादर पुष्पराज सिंह जी, उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया कि वो वाइट टाइगर वापस रीवा में आए, और 10 साल पहले वो रीवा वापस आ गया. Oh, wow. वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा कि रीवा में अब वाइट टाइगर वापस आ गया, एक पुनः उसका. I think this deserves a clap. तो निश्चित रूप से अब जैसा कि आप जानते हैं कि वाइट टाइगर के लिए रीवा फेमस है, तो आज हमारे यहाँ वाइट टाइगर सफारी भी है रीवा में, जिसका नाम महाराज साहब के नाम से ही है, महाराजा मार्तन सिंह वाइट टाइगर सफारी जी. और वहाँ पर मोहन के वंशज है. आप जहाँ पे भी पूरे विश्व में भी कहीं भी वाइट टाइगर देखेंगे तो सभी मोहन के ही वंशज पाए जाएंगे. जी जी जी. आज हम स्टेज पे रॉयल्टी, लग्जरी, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं. वाना, लग्जरी की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? For me, I think मैं हुकम को सुन रही थी and he was talking about luxury being sustainability. Absolutely. I mean, it was something that I was thinking about जब मुझे इस summit के लिए बुलाया गया. I was thinking about sustainability because आजकल so a lot of time I'm living in Delhi, right? तो मेरे लिए luxury है कि मैं उदयपुर जैसे शहर आऊँ या रीवा जैसे शहर जाऊँ and I can breathe normal air, I can breathe pure air. और ये luxury हो गई है. Absolutely. Can you believe it? We live on this planet and finding clean air is luxury. Going to a jungle, in fact. Going to a jungle. I love going to Bandhavgarh. I absolutely love going to Bandhavgarh because वहाँ का AQI 0 है और दिल्ली का AQI 500. I don't know. It'll reach 1000. It's luxury is that you can sit under a tree. जैसे आपने कहा, sir. Luxury is for me that you can milk a cow. Absolutely. Luxury for me is कि आप एक जानवर को देखो एंड आपके दिल में उसके लिए वो सेम भावना है जो आपके बाजू में बैठे किसी इंसान के लिए. आई थिंक फॉर मी luxury is what we are losing right now. Very well said. Well said. Yes. And I think it's high time. I'm so inspired by you, sir. कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करी है कि हमारी जो एक्चुअल ऑर्गेनिक लग्जरी है, जो नेचर से रिलेटेड है, जिससे हम आए हैं. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट लग्जरी फॉर मी. दिव्या, आपके लिए क्या लग्जरी? हाउ वुड यू डिफाइन लग्जरी? देखिए, लग्जरी काफ़ी परसेप्टिव है. Absolutely. देखिए, जैसे पहले अगर हम देखते थे कि राजा महाराजाओं की हम लग्जरी की बात करते थे, तो राजा महाराजा एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, दे वर द हेड ऑफ द स्टेट, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ग्रैंडियोर जो दिखाते थे पहले, चाहे वो बग्घियों में चलना हो, चाहे गजरथ में जाना हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक डिफाइन करती थी कि वो राजा की वेल्थ क्या है या उस स्टेट की वेल्थ क्या है जी. और निश्चित रूप से उनको वो दिखाना, दर्शाना पड़ता था कि आज हम जैसे अगर कहते हैं कि हम परेड करते हैं, हिंदुस्तान की जब परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड, तो हम दर्शाते हैं कि हमारे पास कितने फाइटर जेट्स हैं, कितने वो हैं. इसी प्रकार से उस पर पहले के ज़माने में राजा अपना दर्शाते थे कि हमारे पास कितने हाथी हैं, घोड़े हैं, कितने वो हैं. तो हम लोग पहले उस तरीके से करते थे और उनकी प्रजा कितनी खुश है. आज समय काफ़ी परिवर्तित हो गया है, तो हमको कहीं ना कहीं हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है कि हम अपने आप को कैसे आम जनता के साथ भी जुड़ सकें. क्योंकि अब जैसे मैं तो राजनीति में हूँ, मैं विधायक हूँ अभी, तो कहीं ना कहीं हमको ओवर द टॉप भी नहीं जाना पड़ सकता है कि हम पता चला रोल्स रॉयस में चले गए गांव में,
तो वो भी एक अलग सा लोग सोचेंगे कि कौन आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको उनके साथ कनेक्ट करना है। अगर हमको वहाँ पे जाके खटिया में भी बैठना है, एक हम गरीब के घर में जाएंगे तो उसको हमारे लिए खटिया देना ही उसके लिए एक लग्जरी है। उसको लगता है कि हम आपको खटिया में बैठा दिए, बहुत बड़ा काम कर दिए। जी जी जी। यू नो रीवा रॉयल क्यूजीन के लिए, खाने के लिए बहुत जाना जाता है। मोहना, डू यू कुक? Yes, I do. दिव्या, डू यू कुक? Yes, I also ओह can cook, लवली। तो but क्या समय है, नहीं मिल पाता है। क्या है आपकी फेवरेट रॉयल क्यूजीन्स आप दोनों की? By the way, since आप इनसे पूछ रहे थे, let जी। me just tell you कि ये होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। Okay. And हम स्विट्जरलैंड गए थे, नहीं अमेरिका, हाँ, he was studying in Switzerland, but हम अमेरिका गए थे to just see what he is doing. मैं भी होटल इंडस्ट्री में काम करता था पहले। Okay. इनफैक्ट मैं भी किचन में काम किया हूँ। ओह And that's what I was going to say, कि I have also seen him serve tables, and I was like, what is he doing? What is he doing? But I think it was fantastic. It was a very humbling experience. जैसे हमारे भाई लक्षराज जी भी कह रहे थे। जी। Anyway, so about cuisines, रीवा की जो cuisines है, mainly is शिकार मीट। पहले के ज़माने में बिकॉज शिकार तो प्रेवलेंट था, उस समय काफ़ी हद तक शिकार होता, जंगल बहुत थे उस समय। तो पहले तो शिकार के ज़्यादा मीट्स बनते थे, चाहे वो सांभर के अचार हो या सांभर का हो या बाकी वैरायटीज़ ऑफ थिंग। बट अब जैसे अब चेंजेस आ गए हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं जो घर में बनते थे, क्योंकि शिकार तो बाहर बनता था, कभी घर के अंदर नहीं बनता था। जी जी। लेकिन घर के अंदर जो कुजीन होते थे, चाहे वो हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध है वो है इंद्रहार। इंद्रहार क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पहले पानी की बहुत कमी होती थी, जैसे यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, तो दलहन का बहुत इस्तेमाल होता था। प्लस जो मोटे अनाज होते थे जैसे कोदो है, कुटकी है, इसका बहुत इस्तेमाल होता था पहले। वो अब रिवाइव हो रहा है। आज हम देखते हैं कि सभी जगह रिवाइव हो। इनफैक्ट मोदी जी भी इसको बोल रहे थे कि हमको मोटा अनाज और इस्तेमाल करना चाहिए। जी। तो उसको हम लोग, क्योंकि आज अगर हम आटे की बात करते हैं तो आटे से बहुत लोगों के नुकसान हो रहे हैं। और जो आप कोदो राइस खाते हैं, आजकल कोदो राइस कितना महंगा हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वापस आ रही है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि कल्चर वापस आता है, उसी प्रकार से व्यंजन भी वापस आता है। Absolutely. और एक आयरनी है कि रीवा का जो क्विजीन है, इट्स शिकार मीट्स मोस्टली, एंड आई मीन अनफॉर्चुनेटली फॉर माय फादर एंड फॉर्चुनेटली फॉर द एनवायरनमेंट, हम दोनों ही वेजिटेरियंस हैं, सो माय फादर इज वेरी डिसअपॉइंटेड विद अस। रीवा संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है, लेकिन रीवा में एक मॉडर्निटी भी है। लेगेसी और मॉडर्निटी का कैसे बैलेंस होता है? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए लेगेसी है, वो लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जनता से कनेक्ट होना। जी। अगर हम जनता से नहीं कनेक्ट पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लेगेसी आप घर के अंदर बैठा के रखे रहोगे। तो जैसा हमको अगर अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए या अपने शहर के लिए अगर कुछ, इफ़ यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, यू हैव टू बी इन्वॉल्व सम वे और द अदर। माने चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आप कहीं ना कहीं एनजीओज के माध्यम से कर से हो, तो वो लोग भी हम सब कर रहे हैं। मैं राजनीति में हूँ, ये कहीं ना कहीं अपना कल्चर को कहीं, और अब तो इनकी शादी हरिद्वार में हो गई है तो अब वहाँ पे अपना कल्चर बढ़ा रही हैं। लेकिन फिर देहरादून, नॉट हरिद्वार। No, but like for me, modernity, I would say, because I studied in Bombay, I lived in Bombay, और एक तरह से I joined the film industry, so I saw modernity to the extreme, right? Absolutely. Of course, I really have to thank my grandparents, my mother, father, everybody, कि जब मैं रीवा में थी बचपन में, मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया वहाँ पे, right? I was very involved with with the culture. I really like enjoyed my culture. I loved it absolutely. And also they gave me that opportunity. मेरे parents ने मुझे ये opportunity दी कि मैं बाहर भी जाऊँ, real world देखूँ, and you know, make my own name, right? And thank you to them that they were modern enough to give me that opportunity. I got that opportunity. But there's another thing, because my base was so strong, मेरे roots मुझे हमेशा पुकारते थे. Absolutely. And there was that little, I think after achieving whatever, I think मेरी एक bucket list थी, जब वो धीरे धीरे almost हो गई थी, I was like, something is really, really missing, and that was my culture. So I'm glad I had both of
both of that, modernity and मोहना, आपने culture. एक बहुत ही फेमस सीरियल में काम किया है, रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ जी। अब थोड़ा रियल लाइफ की बात करते हैं। रियल लाइफ में व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स, रिश्तों के बारे में आप क्या सोचती हैं? I truly believe कि रिश्ते ही जीवन बनाते हैं, रिश्ते ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। आप जा जाके जितना चाहे अचीव कर सकते हो, बट आई थिंक दैट bond that you will share with your mother, that bond you will share with your father, or even your spouse, your brother, you know, they are so special. यही आपका जीवन बनाते हैं, and that's what makes life special. Relations make life special. आप दोनों लड़ाई करते हैं? हम तो बहुत झगड़ा करते थे, हाँ, लेकिन कौन जीतता है ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, Who बचपन में हम लोग wins? झगड़ा करते थे, लेकिन आज के समय पे हम लोग झगड़ा नहीं करते, प्रेम करते हैं एक दूसरे से बहुत How ज्यादा। lovely, how lovely. Absolutely. अब दूर हो गए हैं ना, तो he used to tie me up when I was a kid. Really? I'm letting everybody know that. He used to tie me up. इस सेशन का नाम है रूटेड एंड रेजिलिएंट। रूट से जुड़े हुए रहकर नॉर्मल लाइफ में फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक आप दोनों वो कर रहे हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है हम दोनों के बीच में, वो है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। मैंने अपने अचीवमेंट्स किए, उन्होंने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट किया, मुझे अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट रीवा में जब मैं बंदूक भी चलाती थी, तो यू नो इट्स अ ब्रेव राजपूत टू से कि तुम तो मुझसे भी बेहतर चलाती हो। Oh, how lovely. I You think know? this deserves a clap. And I think everyone's sleeping, huh? Is it? Is it? So I really look up to my brother because there's a lot of respect between each other. दिव्या, आप बताइए। नहीं, देखिए, जो जैसा कि आपने कहा कि जैसा मैंने कहा कि हमको कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहिए, चाहे वो परिवार के अंदर हो, एक दूसरे को सम्मान दें। जब एक दूसरे को घर में सम्मान देते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाहर भी एक दूसरे लोगों को सम्मान देते हैं जी। तो उसको आगे बढ़ा के हम लोग एक दूसरे के साथ जाते हैं, और सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं हमको सबसे जुड़ के रहना चाहिए, और वही मेरे ख्याल से आवश्यक है आज की दुनिया में। मैं आप दोनों का इंस्टाग्राम चेक कर रही थी और मैंने देखा कि आप दोनों बहुत ही रॉयल अटायर्स पहनते हैं, लेकिन यू नो इट हैज़ अ सेंस ऑफ मॉडर्निटी इन इट, लाइक जैसे कि आज भी आप लोगों ने बहुत रॉयल ड्रेसेस पहनी है, बट इट हैज़ अ सेंस ऑफ मॉडर्निटी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मॉडर्निटी दोनों रहती है। अब जैसे कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि आदमी दिनचर्या में, चाहे अब राजनीतिक क्षेत्र में है तो ज़्यादातर कुर्ता पजामा पहनता है आदमी जी, और फिर कभी कभी कैजुअल लाइफ है तो जीन्स टी शर्ट ही पहन लिया, तो इसमें कोई वो नहीं है। और देखिए, आप जैसा मेन थिंग जैसा सबने कहा कि कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जिस चीज़ को पहन करके लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली रह सकते हो, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप अगर 50 लाख का सूट पहने हो या 5,000 का सूट पहने हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्युटली। बट अल्टीमेटली आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे आप एक दूसरे से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा, और आपके अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने का, और इंटेलेक्चुअलिटी कितनी अच्छी है। आई थिंक अगर कपड़ों के बारे में बात की जाए, एंड ऑफ कोर्स हमारे रॉयल अटायर के बारे में बात की जाए, तो इट्स बेसिकली सिग्निफाइंग कल्चर, राइट? एब्सोल्युटली। तो आई थिंक मेरा एक, एज आई सेड, बेस स्ट्रॉन्ग था, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नाता प्रीटी मच टूट सा गया था, राइट? ऑफ कोर्स आई रियली I wouldn't say there's anything wrong with wearing modern clothes or anything like that. I wore them, I enjoyed. But I think I'm feeling now this sense of sab tyag rahe hai hamara culture. I feel like nobody wants to promote jo ab hamare hand woven clothes hain. There's very few people who would wear saris on a daily basis. I mean, Yes. I remember my mother looking absolutely elegant in her saris, my grandmother looking absolutely elegant in her पोशाक, and जब मैंने अपनी grandmother का शादी का फोटो देखा था, जी। तो उनका घूंघट था, राइट? और हमारे राजपूतों में जब शादी होती है तो यू कीप अ घूंघट। मैंने अपनी शादी में घूंघट रखा, and oh my god,
since you're talking about Instagram, my Instagram went on fire. She is really famous on Instagram. You have got Okay. you have got like amazing like followers, like some million followers, right? If I'm not wrong. Yes, thank you. But so because I had the ghungat, everybody was like, why is she wearing the ghungat? Like, Ji. is she going back to, the old ages? And there was a lot of trolling. Ke, ye ghungat kya hai? Why ghungat? Why ghungat? Why is she covering the face? Is she uneducated? Yes. And for me, it wasn't about that. For me, it was just, मेरी grandmother ने किया और बहुत elegant लगा. And I want to do it. And then I also want to ask that even Christians have their veil, Absolutely. so what is the big deal? I think हम culture को एक negative aspect से देख रहे हैं. जी. And I don't want that to happen because I think our culture is absolutely beautiful and I think we all should just embrace it. I think absolutely, Moana. And both of you are looking lovely today. Thank you so very much. It was Thank you so lovely much. interacting with you guys, and best of luck. Thank you very much. Thank you so very much. much. Thank you so Khama much. Gani Sahib Salam. मोहिना जी, दिव्यराज जी, अभी आप हमारे साथ मंच पर बने रहें। मैं चाहूँगी मंच पर इनवाइट करना मिस्टर सिद्धार्थ निवटिया जी को एक बार फिर से।